Good morning, children. Uh, Today we will learn about the stoichiometry in solution. Before this, you have seen in previous video that in stoichiometry, if the amount of reactant and amount of product is given, then it is easy to establish the relationship between them. But if the reactant and product is given in the form of solution, if the reactant is taken in the form of solution and product is formed also in solution, so then how we can know that what amount of product is formed or what amount of reactant is taken for the reaction. Actually, such calculations require the concentration of solution, because until and unless concentration of solution is not given, we cannot calculate the amount of solute present in it. And until it is not known that what amount of substance is present, number of moles cannot be calculated, how many moles of reactant is there, because as we know that in stoichiometry the first step is to write the balanced equation, and then the reaction takes place in stoichiometric ratio of the reacting species. So now we will see how the amount of substance present in the solution of any reactant can be calculated. As we know that in laboratory and more often the reactions are carried out in the form of solution. So let us take what is solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The substances that make the solution, they are called components. Homogeneous means when two substances are mixed and they appear as a single substance, then we call that this mixture is homogeneous mixture. For example, if you add sugar in water, then the resulting mixture appears as water only, because the one of the component get disappear in another component, so only one component is visible. So this type of mixture is called as homogeneous. Homogeneous means when homo means single, same, and geneity means phase. You can say that when it appears as a single phase, when it appears as one substance, when the substance is uniformly distributed into another substance, then it is called homogeneous mixture, and all the homogeneous mixtures are called solutions. In solutions there would be two components, one is solute, another is solvent. What is solute? The substance which is present in a smaller amount, in a smaller quantity, that is called as solute, a smaller quantity in mass or a smaller quantity in volume, and the substance which is present in larger quantity, then that is called as solvent. So concentration of solution means what amount of solute is present in unit volume or unit mass of solution or solvent, that is called as concentration of the solution. So there are different modes for expressing the concentration of solution. So we will discuss some of the modes for expressing the concentration of the solution. So first and most common mode is mass percentage or weight percent of the solution, W by W percent. मास परसेंट, जैसा नाम से पता चल रहा, मास परसेंट, परसेंट मीन्स हर 100 ग्राम में सोल्यूट का कितना ग्राम है, ये उसका परसेंटेज होता है. दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज the percentage by mass of the solution. So percentage by mass is equal to mass of solute or weight of solute, where B is solute, A is solvent, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है. वेट ऑफ सॉल्वेंट में वेट ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. सो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारा परसेंटेज सॉल्यूशन मिल जाएगा. अगर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो जहाँ हम वेट ले रहे हैं वहाँ पर परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज करेंगे. परसेंटेज बाय वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर वी ml ऑफ सोल्यूट है जो कि VA ml ऑफ सॉल्यूशन में है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, और ये रेशियो हो जाएगा कि 1 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट का है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा. एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको मान लीजिए दिया है कि 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन
15 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों सिस्टमेटिक यही होता है कि हम पहले लिख लें कि दिया क्या गया है, तो जो कम है वो सोल्यूट है, तो ग्लूकोज सोल्यूट है यहाँ पर, ये 5 ग्राम है, और WA ये 15 ग्राम वाटर है, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, अगर इतना डिजॉल्व करते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 20 ग्राम। अब परसेंटेज बाय मास ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, यही है। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, जो WB है वो कितना है, 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 20 इंटू 100, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25। जो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है ये है 25% बाय मास। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट मोड, another mode of expressing the concentration of solution. So this mole fraction, बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. Suppose any solution is made of two components A and B, where A is suppose solvent, B is solute. Number of moles of A is Na, number of moles of B is Nb. So now mole fraction of A, इसको चाई पढ़ते हैं, चाई A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये रेशियो. And similarly chi B, mole fraction of B is the ratio of its own moles, number of moles of B upon total number of moles in the solution. तो इससे हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाता है. और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में ये 1 के बराबर होता है. जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ B into 1 मोल ऑफ A, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. तो हमें जो दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 मोल है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ये भी 1 मोल है. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा Na प्लस Nb, तो ये आ जाएगा 2. अब चाई A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो A के नंबर ऑफ मोल्स 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.5 मोल. तो सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट का भी चाई B, इसके भी नंबर ऑफ मोल 1, टोटल नंबर ऑफ मोल 2, तो ये हो गया 0.5. और या आप डिफरेंस से निकाल सकते हैं. एक कंपोनेंट का जब निकल जाए तो हम ये लिखेंगे कि नाउ वी नो दैट चाई A प्लस चाई B इक्वल टू 1. तो चाई A 0.5 है, तो चाई B विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5. तो अगर एक कंपोनेंट का निकल गया तो दूसरे कंपोनेंट का डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड वेरी कॉमन mode of expressing the concentration of solution is molarity of solution. It is defined as the number of gram moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is denoted as capital M. Capital M is equal to number of gram moles of solute upon volume of solution in liter. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर. और इस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है. इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मोड है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का जो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. तो टेम्परेचर चेंज करने पर मोलरिटी वेरी करेगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल वही रहेगा, तो इसका मतलब मोलरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा.
अगर मान लीजिए हमारा सोल्यूट आयनिक सोल्यूट है तो जैसे हम मोलरिटी लिख रहे हैं उसी तरह से उसका कंसंट्रेशन हम फॉर्मेलिटी से एक्सप्रेस करेंगे. इन केस ऑफ आयनिक सोल्यूट फॉर्मेलिटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the concentration of solution. So it is same, it can be defined in the same way as in case of covalent solute in case of molarity of the solution. तो ठीक उसी तरह से जैसे हम कोवलेंट सॉलिड में सोल्यूट में मोलरिटी यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के केस में हम उसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं. सो फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालने का वही तरीका होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपन फार्मूला यूनिट मास. और फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने के लिए उस आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है उसके एटॉमिक मासेस को जोड़ के फाइंड आउट किया जाता है. नाउ मोलैलिटी में क्या है, मास टू मास रेशियो होता है. मोलैलिटी का जो मतलब है वो है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान रहे कि यहाँ सॉल्वेंट 1 kg ले लेते हैं. 1 kg सॉल्वेंट अगर हम वाटर में बना रहे हैं तो 1 kg वाटर लेने के लिए हमें 1 लीटर वाटर लेना पड़ेगा. जो सोल्यूट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो अलग चीज़ है. तो हमें 1 मोल, जैसे मान लीजिए हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो 1 मोल सोल्यूट का ले लेंगे और उसको सीधे 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व कर देंगे. तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 kg है और अगर वो वाटर है तो सीधे सीधे 1 लीटर वाटर में उसको डिजॉल्व किया जा रहा है. जबकि मोलरिटी के केस में क्या होता है कि 1 मोल सोल्यूट को हम इतने वाटर में डिजॉल्व करते हैं ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए. तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, ये ध्यान देना पड़ेगा. सो मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल m, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अगर हमारा सॉल्यूशन एक्वस होगा तो ये ध्यान रहे कि जो मोलर सॉल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन मोलर सॉल्यूशन से हमेशा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर सीधे सीधे वाटर मिलाया जा रहा है 1 kg सॉल्वेंट लेने के लिए. लेकिन मोलरिटी के केस में हम वाटर उतना ही मिलाते हैं ताकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो, जबकि वहाँ पर सोल्यूट भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 1 लीटर में से. तो ये क्लियर है, ये ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो वाटर यूज हो रहा है वो 1 लीटर से कम यूज होगा. लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे वाटर ही 1 लीटर यूज हो जाएगा फॉर टेकिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सो 1 मोलर सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. नाउ मोलरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर मास टू मास रेशियो है. बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे. है कि 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और ये बताइए कि इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है. तो ये डिस्कस हो गया कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी कम होगी. लेकिन सबसे पहले हम मोलरिटी इसका फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे. हमें गिवन है WB हमने सोल्यूट को लिया है. सोल्यूट क्या होगा, जो कम होता है वो सोल्यूट होता है 18 ग्राम, और हमें सीधे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 250 ml. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि और हमें फाइंड आउट क्या करना, मोलरिटी. तो मोलरिटी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता है. तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं NB. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मास ऑफ सोल्यूट है उसको मोलर मास से, जो उसका मोलर मास है सोल्यूट का, उससे हम डिवाइड कर देंगे. और यहाँ पर जो मास ऑफ सोल्यूट है वो 18 ग्राम है और इसका जो मोलर मास है वो है 180 ग्राम ग्लूकोज का मोलर मास. और ग्लूकोज का क्या है फार्मूला, C6H12O6. तो ये हो गया 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6. तो ये हो गया 72, ये हो जाएगा 12 और 16 छक्का 96, 6 2 8 2 10, 9 1 10 और 8 18. तो इस तरह से 180 आ गया. इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा.
अब जो मोलरिटी का फार्मूला है वो हम लिखेंगे, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ गया 0.1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, यहाँ पर ml में दिया हुआ है, तो इसको हम 250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें 1 और ये हो जाएगा 4, तो मोलरिटी विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 4/1, तो ये आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये उसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी। हाँ, टेम्परेचर चेंज होने से मोलरिटी चेंज होती है, ये डिक्रीज करेगी। 20 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर 2, यहाँ पे देख रहे हैं WB, ये आपको 20 ग्राम दिया हुआ है। यूरिया है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2 दिया हुआ है, और यहाँ पर साथ में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है WA, ये दिया हुआ है 200 ग्राम। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉल m, दैट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी फाइंड आउट करने में क्या करते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में सॉल्वेंट रखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, और मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास कितना हो जाएगा n का हो गया 14 और 2 हाइड्रोजन का 16 हो गया, और 16 12 28 और 28 और फिर इसमें 16 जोड़ दीजिए, ठीक है। 28 10 38 और 6 44 और 44 और 2 46, 46 4 50 10 60, तो इसका मतलब 60 हो गया, और 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बच्चों आ गया 1/3। तो ये तो रहा नंबर ऑफ मोल्स, और 1/3 नंबर ऑफ मोल्स को अब आपको डिवाइड करना है किससे, 200 ग्राम से, तो 200 को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब ये आपका आ गया 1/3, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे, ये कैंसिल कर दीजिए तो 5, तो ये आ गया 5/3, और 5/3 सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, और फिर 0.2, और फिर 3 6 18 2 3 6 18, इतना मोल पर केजी। तो ये हमारा मोलरिटी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम लेंगे कि स्टोक्योमेट्री इन सॉल्यूशन। तो पहले तो अमाउंट दिया रहता था, लेकिन अभी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, या उससे रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है, या मोल से रिलेशन इस्टेब्लिश करना है जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.575 मोलर HCl। तो आंसर हो जाएगा, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्शन है उससे ये पता चल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है का 1 मोल ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl के। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं ये HCl जितना मोल है उसका हाफ होगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है कंप्लीट रिएक्शन। तो अगर हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएं, तो जैसा हमें देखिए यहाँ पर HCl का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो उसका हाफ कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो गिवन डाटा है उससे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो मोलरिटी कितनी है 0.7
0.75 है, ये मोलरिटी हुई इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 25 ml है। अब मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो ये ml में है तो इसको भी आप लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 40, तो ये आपका आ गया कितना 0.75/40। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0 पॉइंट तो यहाँ आ गया और 0.75 हो गया, एक बार ले जाएंगे तो ये 35, 350 हो गया, 4 8 32, 3 35 30 हो जाएगा, 4 7 28 और फिर इतना, ये इतने मोल्स हो गए किसके, HCl के। नाउ फ्रॉम स्टोकियोमेट्री इट इज़ क्लियर दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर of moles of CaCO3, this is equal to number of moles of HCl divided by 2। इसका आधा होगा, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो इसका 1 मोल इसके आधे से करेगा। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.01875 निकल के आया, इसका हाफ कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो ये हो गया 0 पॉइंट, तो यहाँ आ गया, फिर 0 पॉइंट लेने पर यहाँ आ गया और फिर 0 यहाँ आ गया और फिर 0, ये 18 हो गया। अब 2 9 जा 18 और फिर 2 3 जा 6, 2 7 जा और 5 जा, इतने मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब अमाउंट निकालना है, मास निकालना है, तो मास ऑफ CaCO3, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.0097375 और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40 कार्बोनेट का 60 होता है तो 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 2 डिजिट इधर आ जाएगा डेसिमल, तो 0.9375 ग्राम। तो ये बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब भी सॉल्यूशन की बात करता है तो उसमें ज़रूर कंसंट्रेशन दिया होगा, तो उस कंसंट्रेशन से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए, फिर मास फाइंड आउट करिए और फिर स्टोकियोमेट्री देखिए कि उनमें रिएक्टेंट में आपस में क्या रिलेशन है, तो या प्रोडक्ट का उससे क्या रिलेशन है। तो जो भी अननोन क्वांटिटी है आपको कैलकुलेट करनी है, उसको यूनिटरी मेथड से यूज करके जैसा आप स्टोकियोमेट्री में करते हैं आप कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।